यूनिवर्सल न्यूज़ के तमाम व्यूवर्स को मेरा आदाब। आज हम मौजूद हैं लॉयड इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंस में, जो मान्यता प्राप्त है NFSU गुजरात से। और यहाँ एक सेक्शन चल रहा है उन स्टूडेंट्स का जो लॉ के हैं और पूरे NCR से जो लॉ के स्टूडेंट हैं वो सब आज लॉयड इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंस में जमा है। तो आइए चलते हैं, देखते हैं स्टूडेंट्स को तैयार करा जा रहा है भविष्य के लिए, ताकि अपराधों पे रोक लगे। We are privileged to have Sir, who will share his wealth of knowledge with us over the next 2 days, and we eagerly anticipate the enlightening discussions and exchanges that will undoubtedly enrich our understanding of forensic science. What is ballistics? So you know the term ballistics derived from the Latin word ballista. It means I think आप लोगों ने देखा होगा बुलेट, सभी ने देखा होगा। बैलिस्टिक्स बेसिकली उस पे ही वर्क करता है। तो बैलिस्टिक्स है क्या? बैलिस्टिक्स इज अ साइंस डील्स विद द फ्लाइट बिहेवियर एंड इफेक्ट ऑफ प्रोजेक्टाइल, एंड this comes in a forensic for the code of law, then it will called forensic ballistics. Like bullet, bullet हो गया आपका pellets will applied by a expansion of gases. These gases comes out from the burning of propellant, that is called main charge. This firearm when covered under arms act. This arms act is 1959. A firearm means arms which describe with design or adapted to discharge projectile of any kind of action that is different from the arms act. In this arms rule 9. Now, what is air gun? Air gun is a firearm having compressed air for their functioning, not any propellant. प्राइमर होता है। प्राइमर आपका कहीं भी बेस पे हिट करेगा तो फायर हो जाएगा। सेम इसी तरह ये थोड़ा सा हार्मफुल हो गया, तो मान लीजिए ये गिर गया तो ब्लास्ट हो जाएगा, ठीक है, किसी को भी नुकसान हो सकता है। आपके आसपास कोई भी होगा तो बुलेट जाके हिट कर जाएगी। इसके बाद आया आपका सेंटर फायर। सेंटर फायर में क्या गया? सेंटर फायर में बेसिकली आपका ये जो देख रहे हैं आप परकुशन कैप, इस परकुशन कैप पे प्राइमर रखा गया है। जब भी फायरिंग पिन हिट करेगी परकुशन कैप पे, जब तक फायरिंग पिन हिट नहीं करेगी ये फायर नहीं होगा। फायरिंग पिन जैसे ही हिट करेगी इसके बाद ही ये फायर होगा। ये आपका था रिम फायर। इसमें कहीं भी कुछ भी हिट करे या रब करे ये बस्ट हो जाएगी। देयर इज नो ammunition, only dummy. Now, type of cartridge or cartridge case. Classification based on rim. Rim is basically a part of base of this cartridge. But hollow point bullet goes towards main charge from base to body, and this one is called burden, having 2 holes. Hammer cocking, trigger pull, hammer strike on a firing pin, and this firing pin hit the percussion cap, gas generated, a force generated, and after the all process bullet eject out from the muzzle. Crime scene is basically an incident site where a crime has been committed. The wound was found to be 4x7 mm, ठीक है। बट ये जब बाहर निकली तो इसका साइज जो है वो 3x5 रह गया। कैन एनीबडी आंसर क्यों? हाँ, मेटल डिपॉजिट हो गया तो बुलेट का उसका साइज छोटा हो चुका था। बट द बेस्ट पार्ट ऑफ जो भी शूटर था, द बुलेट दैट ही हैड यूज्ड वाज, सर ने आपको बताया अभी कि फुली जैकेटेड होती है, सेमी जैकेटेड है, नो जैकेट एट ऑल, राइट? So it was fully jacketed lead bullet. Now this bullet was intended around those things. We have बहुत सारे shapes होते हैं bullet के, है ना, pointed, round. So this one was a round bullet, round shaped bullet, fully jacketed lead bullet. Round shape और pointed में क्या difference रहेगा? Round shape में कैसा impact रहेगा? Any idea? कोई चीज round है तो उसका जो penetration है ना वो ज्यादा होगा, वो injury ज्यादा रहती है, right? सरफेस एरिया ज्यादा है उसका, पेनिट्रेशन है ना सर, डिफाइन रॉ है सो सरफेस एरिया उसका ज्यादा है तो उसकी इंजरी ज्यादा हुई। दिस बुलेट वाज, दिस राइफल एंड दिस बुलेट जो फायरआर्म यूज किया, दिस वाज इंटेंडेड कि ज्यादा इंजरी हो, जिसको भी शूट किया गया उसकी ज्यादा इंजरी।
So now the ballistic reports, it talked about angle, it talked about muzzle velocity, talked about the intent also. The intent was there not to kill the president, right? So it talked about these three things, right? Next, the backward, please go backward. Okay, so जो bullet मिली हमें recover हुई. Okay, I talked about 3 bullets, but we discussed only 2. हाँ? किसी का क्या हुआ? मिस हो गया because जब गाड़ी चल रही थी तो उसने फर्स्ट और सेकंड के बाद ही लाइक स्प्रेड अवे वहां से तो वो थर्ड बुलेट मिस हो गया. वो मिला हमें सीन ऑफ क्राइम पे. सो ये जो बुलेट है थर्ड बुलेट, दिस वाज फिजिकल एविडेंस है ये हमारा, ठीक. एंड दिस वाज गिवन टू द लैब, न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस हुआ, ये सब कुछ हुआ. ठीक है, अभी तक हमारे पास फायरआर्म नहीं है फॉर कंपैरिजन, किसने किया क्या किया वो हमें नहीं पता है. When we got a call, the police they got a call कि depository से एक जो Oswald है मैच कर रहा है इसका डिस्क्रिप्शन एंड he is a former employee और इसका कुछ तो मतलब थोड़ा सा mentally he was not stable because he had lost his job. तो मतलब mentally he was not that stable at that point of time. So they went to the depository, recovered the firearm. इतना बड़ा firearm था वो. ये देख, first image it shows the firearm that was used for this assassination, right? Now he had left this firearm at the scene of crime. छोड़ के चला गया. 9 bullets भी वहाँ पे थी, वो सब छोड़ के चला गया. He had one revolver और वो भागा वहाँ से just to save himself. फिर वो थिएटर में चला गया because थिएटर में कौन आके चेक करेगा. जब हम फायरिंग करते हैं, ठीक है, फायरिंग के टाइम पे एक धुआं आता है, ठीक है. इस धुएं को हम बोलते हैं गनशॉट रेजिड्यू या GSR. इसका सोर्स क्या है वो हमें पता लगाना है, ठीक है. बेसिकली ये बनता कैसे है. जब भी फायरिंग पिन हिट करती है परकुशन कैप पे, परकुशन कैप तो देखी हुई थी ना, परकुशन कैप पे कुछ मटेरियल होता है जिसको बोलते हैं प्राइमर या प्राइमिंग मिक्सचर. इसमें 3 बेसिकली एलिमेंट होते हैं, लेड, बेरियम और एंटीमनी. इन तीनों के कंपाउंड्स होते हैं इसमें. आफ्टर फायरिंग ये लेड, बेरियम और एंटीमनी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, ठीक है. पहला पार्ट ये. सेकेंडरी बुलेट. बुलेट बेसिकली 2 पार्ट से बनी होती है, एक लेड और उसके ऊपर का जैकेट, ठीक है. लेड अपना पार्ट छोड़ता है, जैकेट अपना पार्ट छोड़ती है, जो कि दोनों में मिक्स हो जाती है, ठीक है. थर्ड आता है बैरल. बैरल के अंदर बेसिकली क्या होता है, आयरन. ये आयरन भी उसमें जाके मिक्स हो जाता है. तो इन सारा का जो कॉम्बिनेशन है, ये कॉम्बिनेशन ही बनाता है GSR, ठीक है. अब इसी की हम टेस्टिंग करेंगे. टेस्टिंग में हम करेंगे सोडियम रोडिजोनेट टेस्ट फॉर लेड डिटेक्शन. ओके, ये हमने सोडियम रोडिजोनेट टेस्ट परफॉर्म किया है. ये बेसिकली प्रोपेलेंट है, ठीक है, जिस पे हमने जो सोल्यूशन बनाया है सोडियम रोडिजोनेट और एसिटिक एसिड का मिक्सचर, उस पर ड्रॉप बाय ड्रॉप डालेंगे. 2 से 3 ड्रॉप डालेंगे और हमारा कलर पर्पल कलर आ जाएगा, ठीक है. इट कंफर्म्स लेड. ओके, हमारे इस प्रोपेलेंट में लेड है. ऑक्सी बोलते हैं ना, ऑक्सी में देखो इसको क्या क्या चीज़ है, क्या हमारा एम है, व्हाट आर दी मटेरियल रिक्वायर्ड, ठीक है. इफ आई एम मिसिंग आउट ऑन समथिंग यू राइट योर ओन मटेरियल, क्या मिस किया मैंने, ठीक. मटेरियल रिक्वायर्ड एंड देन राइट द प्रोसेस इज वेल एंड आफ्टर दैट योर ऑब्जर्वेशन, रिजल्ट एंड देन प्रिकॉशन, ठीक है. देखोगे ऑक्सी. जब भी आप कभी क्राइम सीन पे जाएंगे तो आपको एक क्लॉथ मिलेगा, ठीक है. वो क्लॉथ IU सीज करके आपके पास लेबोरेटरी में भेजते हैं, ठीक. जब आप लेबोरेटरी में इसको ओपन करेंगे तो आपको ये इस तरीके का एक होल दिखेगा. अगर बुलेट होल है, अगर फायरिंग का केस है तो एक होल दिखेगा. होल के चारों तरफ आपको कुछ ब्लैकनिंग दिखेगी, ठीक है. ये ब्लैकनिंग ही GSR डिसाइड करती है. That you write categorically the description of the exhibit received by you, ठीक है. जब आपको ये एनवेलप आएगा आपके पास, सील विल चेक कर लिया, चेन ऑफ कस्टडी आपने सारी चीज़ें देख ली, इसका डिस्क्रिप्शन लिखो, ठीक है. क्या डिस्क्रिप्शन लिखेंगे आप? वाइट कलर
handkerchief with the hole in the middle, hmm. gun residue present around the hole. Don't harm. Never mention that you are, initially only sure about the presence of gunshot residue. ठीक है? A black color deposit was seen in the middle, ना? Nearby the hole, around the hole. ठीक है? Mention उतना ही करना है जितना हमने दिख. ऐड ऑन ना हो और डिलीट ना हो, चीज़ें ऐड ऑन नहीं होनी चाहिए, डिलीट नहीं होनी चाहिए, वहाँ से कुछ रिमूव नहीं होना चाहिए. समटाइम्स क्या होता है, मान लीजिए बुलेट हम कैसे पहचानेंगे देख कर, ठीक है, ये सिर्फ हमारा ऑब्जर्वेशन है, कंफर्मेशन नहीं, ठीक है. एंट्री होल हमेशा छोटा होता है, पता है ना, और एग्जिट होल हमेशा बड़ा होता है. ऐसा क्यों? इम्पैक्ट लेते हुए इम्पैक्ट का फुल जो शॉट में रहेगा तो वहाँ पे वो भी ब्रेक करेगा, लेकिन अगर बाहर से मारेंगे तो वो एक स्पीड में आएगा जो उसका स्पेस बना के वहाँ पे होल करता है, और जब वो एग्जिट करता है तो वो साथ में कुछ टिश्यूज, फ्लैश या बोन्स लेके निकलता है, तो उसका भी इम्पैक्ट साथ में आता है. बट ऐसा होता क्यों है? बेसिकली फोर्स की वजह से, ड्यू टू राइफलिंग, ड्यू टू इट्स गायरोस्कोपिक मोशन, ठीक है. तो ये एक कोन की तरह एंट्री और एग्जिट बनाता है, ठीक है. एंट्री हमेशा छोटा है, एग्जिट हमेशा बड़ा है. इसको आप पहचानेंगे कैसे कि ये एंट्री है, ये एग्जिट है? ये आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, ठीक है. बॉडी पे या किसी क्लॉथ पे एंट्री उस पॉइंट को बोलते हैं जहाँ पर आपके थ्रेड्स या फ्लैश इन्वर्टेड हो, ठीक है, वो एंट्री होती है, और इन्वर्टेड हो वो आपका एग्जिट होता है, ठीक है. अब देखिए इसमें ये स्मॉल होल, ठीक है, और ये बिगर होल, ये आप लोग देख सकते हैं. स्मॉलर एंड बिगर मीन्स एंट्री इधर से हुई है और एग्जिट इधर से हुआ है, ठीक है. अब होमिसाइड और सुसाइड कैसे डिसाइड करेंगे? होमिसाइड का फीचर क्या होता है? क्लोज या कॉन्टैक्ट शॉट. क्लोज और कॉन्टैक्ट शॉट में क्या होता है, उसका कुछ ऑब्जर्वेशन होता है. आपकी जो स्कॉर्चिंग होगी, जो ब्लैकनिंग होगी, वो एंट्री पॉइंट पे आएगी. यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है. तो ये सुसाइड नहीं है, ये होमिसाइड केस है, ठीक है. इट मीन्स अब हमको फायर आर्म सर्च करना है या कार्ट्रिज केस सर्च करना है और बुलेट सर्च करनी है, तो उसके लिए हमें पीछे जाना पड़ेगा. तो चलें पीछे. जॉइंट कीजिए 7.65 के थे, ठीक है. जो कार्ट्रिज केस थे वो हमारे 7.65 के थे, तो बुलेट 7.65 की होनी चाहिए, राइट. अब कार्ट्रिज केस हमने रिकवर कर लिए, पिस्टल हमने रिकवर कर ली, अब रह जाती है हमारी बुलेट, ठीक है. अब बुलेट हमको कैसे सर्च करनी है? हमको डायरेक्शन पता होनी चाहिए पहले, ठीक है. अगर हमारी पिस्टल इधर मिली है तो हो सकता है यहाँ से लेके यहाँ इतना एरिया फायरिंग का हो, ठीक है. तो वहाँ से लेके यहाँ तक हमको सारा एरिया सर्च करना है एक एंगल बना के, ठीक है. हम यहाँ से एंगल बनाते हैं. हमारी कोशिश है यूनिवर्ल्ड न्यूज़ की कि वो कोर्स जो आपका भविष्य बना सकते हैं, वो कोर्स जो आप आसानी से कर सकते हैं, उन्हीं कोर्सों में एक कोर्स है फॉरेंसिक साइंस का. इसकी बहुत ज़्यादा देश में वैकेंसीज हैं और आप इसको कर सकते हैं. अगर आपको इसकी कोई नॉलेज चाहिए तो आप मेरा नंबर 9311487709 पे मुझे कॉल्स कर सकते हैं. मैं आपको पूरी आपकी हेल्प करूँगा. और ये जो हमारा एपिसोड है ये जारी रहेगा. उम्मीद है ये एपिसोड आपको पसंद आएगा. इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ. यूनिवर्ल्ड न्यूज़ ब्यूरो, लॉयड इंस्टीट्यूट ऑफ फोरेंसिक साइंस, ग्रेटर नोएडा, यूपी.